I feel that I didn't put efforts. एक होता ना कि वो मर मर के जैसे तैसे बस कंप्लीट किया है. ठीक है, आई एम श्योर सारी चीजें पैसा वसूल है फॉर यू. हाँ बहुत. That was I was saying ना, whenever these type of things happen, at least with me, I always feel happy. कि जिस रेनी डे की मैं बात कर रहा था वो रेनी डे एक्सपीरियंस कर लिया. हाँ आदित्य, सो हाउ वाज योर वीक? कैसा रहा ये हफ्ता? This week was there were different type sort of situations, so I will not say bad, but at the same time not so good. ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल हाफ ऑफ द वीक, है ना? 3 दिन जो है वो खराब हो गए अब की बार. Correct. तो एक दिन तो मुझे I will समझ not say that I have wasted those 3 days. As I mentioned that I am going through some internal interviews. So ठीक है. the only thing is that ki I realized that apart from those interviews also I was getting some time in which I could have completed the task, but I procrastinated that. So that's why I feel that. ठीक है. I feel that I didn't put efforts. Like if I would have started and like fighting till the end, till 23:57, what time we have decided that till this time I have to complete. But I didn't tried that much. So if I would have tried, ki okay, I tried, but I was not able to complete that. So then there would be no regrets. But as I didn't tried and directly gave up or just procrastinated that, so that's why I felt ki the week was not fruitful in terms of studies. Like in exercise and all, I perform well. In study part, the things were not great. Or even today also, I completed the task, but एक होता ना कि वो मर मर के जैसे तैसे बस कंप्लीट किया है. मैं माइंड एंड आई वाज जस्ट डूइंग जैसे 3 घंटे खत्म करता हूँ फटाफट. दो आई वाज मेकिंग नोट्स एंड ऑल, बट नॉट that much fruitful. कोई बात And नहीं. there is one more thing which I want to add, that I guess tomorrow is the last lecture of my those classes. ठीक So the है. main thing will start day after tomorrow. Reason being, for these 13-14 days, what I was doing is I was just completing those classes, like watching the classes and making notes. But the main part is now understanding. For that, I need to do self-study. ठीक है. So now, my reliance on this phone and all will be less. So that will be a difficult task for me, because apparently I was using the screen for some good purpose, but I was using screen. So now, as I had made all the notes and all, so now the main thing is that I have to do the self-study and all. So that will be the most challenging part for me, what I feel. ठीक है. तो अभी मतलब हाउ मेनी लेक्चर्स आर यू लेफ्ट विद इन टोटल टू कंप्लीट दिस कोर्स? 1 पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा इस लेक्चर के बाद? खत्म. Oh, very nice. Which means you will be completing the course before our target, है ना? जो हमने सेट किया था before the duration itself. हमने जो ड्यूरेशन सेट किया था उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा ये तो. ठीक है. एंड देन व्हाट विल रिमेन आफ्टर दैट? जस्ट रिवीजन एंड देन टेस्ट्स? I feel that using the term ki complete ho jayega is not the correct term. Because for me, completing the course means understanding every concept. Like right till now, what I have did, I just watch all the videos and make notes. So I don't have the understanding. I just have material. Ki, okay, now I have to study this and need to understand the concepts. So till the end of this month, our goal is to complete the course. Means completing notes as well as building that understanding. So we are halfway there and 50% work is left. ठीक है. Then what is your strategy
to enhance your understanding then? Do you I have feel any that this strategy? is my, Mm-hmm. I was saying that this is my weak part. So I don't want to make my own strategy Hmm. because I had made several times and I have failed drastically in those uh, strategies. So I was thinking that the strategy which you will tell me, I will follow that. Sure. I mean, we can do that. बट ये कुछ भी अनयूजुअल नहीं है. आई थिंक हम सभी अपना अपना टाइम टेबल या स्ट्रैटेजीज है ना सब बनाते हैं. ठीक है, एक दिन 2 दिन बहुत एंथुजियास्टिकली फॉलो करते हैं एंड देन वी ड्रॉप. Correct. है ना. ठीक है, विल डेफिनेटली कम अप विद अ स्ट्रैटेजी. फिलहाल के लिए लेट्स जस्ट एड्रेस दीज 3 days. ये 3 दिन जो पिछले गए, एक दिन तो इंटरव्यू था, है ना. दूसरे दिन क्या था? नहीं, दूसरे दिन भी इंटरव्यू था ना. दूसरे दिन भी इंटरव्यू था. ओके, ठीक है. और तीसरे दिन? तीसरा तो आज का ही दिन है, I guess. भाई तीसरा है 12th of March. अच्छा, okay. So the first day I prepared for all those interviews and all because that day I got to know. And then on second day interview and then on third day interviews. अच्छा, फिर है ना 3 दिन. ठीक है. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आदित्य, इफ यू माइट हैव नोटिस्ड तो यू हैव गॉट सम नेगेटिव पॉइंट्स, है ना, इन योर शीट. और उन नेगेटिव पॉइंट्स का रीज़न ये है दोस्त कि इवन दो गिविंग एन इंटरव्यू इज़ अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव थिंग, बट स्टिल Thank you. द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि इन लाइफ यू विल ऑलवेज हैव टेम्पटेशंस, है ना. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो टेम्पटेशंस जो हैं वो गलत ही हों, है ना. फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज वन टेम्पटेशन और ये अच्छी टेम्पटेशन थी. देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद दैट. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी. ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस बनती हैं, है ना, जहाँ पे हमारे पास एक बहुत ल्यूक्रेटिव चीज़ है या जिसे हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट है, और दूसरी तरफ है हमारा लॉन्ग टर्म गोल है ना, या लेट्स से कि शॉर्ट टर्म गोल है कोई, और हम उन दोनों के बीच में फिर जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को, है ना, टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर अस, अपने लिए चीज़ें आसान बनाने के लिए. और दैट इज़ द सेम थिंग दैट यू डिड एंड यू हैव डन इट वंडरफुली. सो ये 3 दिन तो माफ़ हैं, है ना, कोई इशू नहीं है. The thing is ना कि as I was telling कि I was getting time but I didn't. ठीक है, वो आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, बट अगर इतनी ऑनेस्टी है दैट यू आर विलिंग टू एडमिट कि समय था और मैंने नहीं किया, तो आई थिंक पहला स्टेप तो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, है ना. नाउ द सेकेंड स्टेप विच कम्स आफ्टर दिस इज कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा हो, है ना, तो वी नीड टू पुट अ चेक मैकेनिज्म इन प्लेस कि कम से कम यू हैव समथिंग विच यू कैन रिलाई अपॉन. कि जिस रेनी डे की मैं बात कर रहा था वो रेनी डे एक्सपीरियंस कर लिया, है ना, दैट एनीथिंग माइट कम अप, राइट. दैट इज़ वाई अपने गोल्स को लेके जब भी हम स्ट्रैटेजी बनाएं तो उसमें एक जगह हमेशा होनी चाहिए कंटिंजेंसी प्लान के लिए, कोई भी इमरजेंसी के लिए, है ना. और उसका तरीका यही होता है कि आप अपने गोल्स जो आपने सेट किए उनको थोड़ा सा स्पीड अप करो, है ना, जितना रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो, 10% एक्स्ट्रा, है ना, और परहैप्स 20% एक्स्ट्रा, करेक्ट, है ना, सो दैट यू कैन सेव सम डेज और सम आवर्स एटलीस्ट, जो आपके लिए हमेशा एक मार्जिन की तरह रहे, है ना, कि कभी गलती भी हो जाए. अच्छा, फिर रही बात इसकी कि यू हैड द टाइम एंड यू वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, है ना. ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है आदित्य. जब 2 दिन आप अपने गोल से डाइवर्ट हो चुके हो, है ना, तो तीसरे दिन आपको वापस आने में समय लगता है ना. ये एक तरीके से रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है. ओके. बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम से ही ट्रैक पे वापस आ जाएंगे. आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना,
बट ठीक है, यू शुड नॉट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ रिगार्डिंग दिस, बिकॉज ऑन द फोर्थ डे यू हैव डन वेल, यू हैव अचीव्ड योर टारगेट, है ना, जो सेट किया था. एंड आई नो कि इट मस्ट हैव बीन टफ टुडे. आज थोड़ा सा मुश्किल भी रहा होगा इस टारगेट को अचीव करना, बोरिंग भी रहा होगा, बट स्टिल यू हैव टू पुश योर सेल्फ थ्रू इट. उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं. आई एम श्योर कि अगले 1-2 दिन जैसे ही गुजरेंगे, थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू अगेन. करेक्ट. क्योंकि एक बार जब फ्लो टूट जाता है तो दोबारा बनने में थोड़ा तो समय लगता है ना. बट यू विल बी बैक टू द नॉर्मल. अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने फोकस पे बात की थी, है ना, बिकॉज यू वर नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली. सो आई गेव यू अ ट्रिक, है ना, आई गेव यू एन एक्सरसाइज टू डू. डिड यू डू इट रेगुलरली? I was only able to do that for the first day. After that, I was not able to follow that. But on the first day also, I didn't like the things which you mentioned. कि वो image will change, or like you will not able to see the corners and all. So that thing didn't happen for me. That maybe because I was doing that on the small screen or something like that. नहीं, ठीक है. एक्चुअली क्या है कि दैट एक्सरसाइज इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, है ना. Okay. लेकिन कोई भी जो चीज़ है, स्पेशली फोकस जैसी चीज़, फोकस के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू अचीव एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट टू लूज. Correct. ठीक है, तो वो सेम चीज़ है. तो इट विल टेक यू सम टाइम, यू जस्ट कीप डूइंग दैट एक्सरसाइज. थोड़ा समय गुजरने के बाद यू विल नेचुरली बिकम चैम्पियन एट इट, है ना. आई एम श्योर कि वो फोकस स्पैन जो है, अटेंशन स्पैन, वो इंक्रीज होगा ग्रेजुअली, है ना. तो कोई बात नहीं, we will Do you keep have any doing that. picture or poster something like that, so which I can get a print, so that will be a I will tell you a better way, है ना. okay. मैंने ढूंढ लिया था इस बार, एंड आई स्पेसिफिकली सर्च्ड फॉर एन ऐप, एंड दिस ऐप इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. Okay. सो इस बार से वी आर गोइंग टू पुट दैट ऐप इनटू एग्जीक्यूशन. ठीक है. और इसके अलावा कोई और इश्यूज जो आपकी बार फेस किए? Issues were, I didn't face any sort of issues apart from that procrastination, mainly because of some those personal things. Then the focus is there, which I mentioned last time. Okay, so there is one more thing that right now I am also trying to focus on my diet, my protein intake and all. So that particular segment I am facing some situations. Like for example, I need to take around 2000 to 2022 2200 calories and all. So just sorting things out in this particular domain. As today my calorie count is only 1400. So just figuring out, I can say that this can be also the reason because of which I was procrastinating, because when you are eating less, you feel tired, lack of energy and all. But I feel that this will improve automatically. In terms of eating habits, I am very bad. Like if I have to choose between sleep and eat, so I will always choose sleep. ठीक है. Well, you already have a solution in mind, na? And you already know what your pace is towards reaching that solution. Anyways, बात ये है, देखो, tracking things like food habits and all, है ना, ये सब behavioral aspects हैं और सब mindset का ये एक हिस्सा है, लेकिन हम एक समय पे बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक नहीं कर सकते. हाँ, करेक्ट है ना. तो वी नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन वन सिंगल थिंग. हम एक ही चीज़ को ट्रैक करेंगे फिलहाल, ठीक है, करेक्ट. जब तक ये गोल अचीव नहीं होता. वी विल नॉट ऐड एनीथिंग एल्स टू इट. करेक्ट. ठीक है.
रही बात दूसरी कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, अब जैसे खाने पीने की प्रॉब्लम है, दो ही चीज़ें आ देते हैं, ठीक है। अगर भूख नहीं लग रही है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढना है, ठीक है, देन बी रेडी टू लूज द वेट, ठीक है। करेक्ट। एंड इफ यू आर नॉट विलिंग टू लूज द वेट, देन चार्ट आउट अ डाइट प्लान फॉर यू कि ठीक है, रात में क्या कर सकता हूँ मैं, क्या सॉल्यूशंस है मेरे पास। भाई मैं चिप्स खाऊंगा, उससे अच्छा स्प्राउट्स खा लूँ। भाई टेल मी दिस, चिप्स खाने के लिए क्या भूख लगने की ज़रूरत होती है क्या? नहीं, भूख लगती है ना। यू जस्ट बाय अ पैकेट ऑफ चिप्स एंड गॉबल इट डाउन, है ना। ठीक है। सो व्हाई डोंट यू जस्ट यूज द सेम थिंग टू योर एडवांटेज, है ना। कीप समथिंग हेल्दी एंड टेस्टी विद यू which gives you your necessary calories without harming you actually। भाई सैंडविच में पीनट बटर लगा लिया, जैम लगा लिया, कुछ है ना, दैट वे इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, है ना। करेक्ट। ठीक है। सिमिलरली स्प्राउट्स में कुछ चाट मसाला डाल लिया, एनीथिंग यार, यू कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो तो कोई इशू है ही नहीं, है ना। जो भाई जबान इतनी चटोरी होती है ना, उसको वो कहीं भी स्वाद ढूंढ लेती है। ठीक है ना, सबको पता होता है उनको क्या पसंद है, ठीक। तो ये कोई इशू ही नहीं है यार, ठीक है। यू विल बी एबल टू हैंडल इट ऑन योर ओन। इसके अलावा कोई इशू है तो टेल मी। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट फील दैट देयर इज एनीथिंग राइट नाउ। ठीक है, तो फिर अब सिर्फ रिवीजन स्ट्रैटेजी बचती है जिस पे हमें काम करना है ना। करेक्ट। ठीक है। सो लास्ट टाइम मैंने स्पेस्ड रिवीजन की बात की थी। Did you researched more on that, या फिर do I need to give you a strategy? For that spaced revision, I just got one thing in mind that I was thinking to make a spreadsheet for that particular thing also, because like what I am revising today, then remembering on the third day that I have to revise this thing. That will like streamline the process if we will make a spreadsheet, Excel sheet or something like that. सही बात है। Yes, we can do that. We can do that. At that time, like I was watching those classes, so that's why I didn't pay that much attention. But like tomorrow, I will complete those classes. From day after tomorrow, we need to have that Excel and all to see that what is our progress in that particular aspect. ठीक है, we will create a separate sheet, है ना, और उसमें हम ये spaced revision जो है इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट विल ट्राई कि you at least revise everything 4 times in total, है ना। I think that would be enough to memorize things permanently. In revision, I was thinking that like there were 13 classes. So right now we have just wrote the things out. Like we don't have that much understanding. So I was thinking that 13 classes are there. So like we'll start from like day after tomorrow. So we'll take class 1. Then on day class 2. Then on next day class 3. I was thinking like that. ठीक है, but you see, you have to make sure कि हर एक रिवीजन का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी योर कंप्लेंट इज कि जो भी पढ़ा है उसमें समझ नहीं आया मुझे ज़्यादा कुछ, है ना, कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। दिस इज़ योर कंप्लेंट एट द मोमेंट। सो व्हाट यू शुड फोकस अपॉन इज कि जितनी टर्मिनोलॉजी है जो नहीं समझ में आई है ना, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यू नीड टू सर्कल देम विद इन योर नोट्स एंड लुक देम अप ऑन द इंटरनेट। पहले रिवीजन का यही काम होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि पहला लेक्चर है, यू मेड योर नोट्स, ठीक है। अब उस लेक्चर में लेट्स से 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो नहीं समझ में आए हैं। सिमिलरली 10 या 20 टर्मिनोलॉजीज होंगी जो नहीं समझ में आई होंगी, करेक्ट, है ना। आइदर यू कैन चैट GPT देम एंड इट विल गिव यू अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और यू कैन लुक देम अप ऑन द इंटरनेट या फिर यूट्यूब पे देख के जैसे भी समझा जा सके उसे समझ सकते हो, ठीक है।
इससे क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग में जो गैप्स बने हुए हैं ना, वो गैप्स फिल होंगे, ओके और उन्हीं नोट्स को सप्लीमेंट करना, यानी जहां सर्कल किया उसी के बगल में छोटे माइक्रो नोट्स बनाना, ताकि दोबारा जब उसी कॉन्सेप्ट को देखो अपने नोट्स में, सो यू इमीडिएटली नो व्हाट इट इज। करेक्ट करेक्ट ठीक है, तो हमारा पहले रिवीजन में टास्क क्या होगा, उन गैप्स को फिल करना। There is one more thing which I want to add, that like I made all the notes. So understanding is not the problem. Like for example, there is a control information deletion, information delete or something like that. So it is not like that I didn't understand the control. The main thing is that I have to learn that exact definition. Understanding is there, and if these are very small things, if someone will ask what is risk, what is opportunity, so everybody knows, but give that precise definition in one line. So that is important, and that thing is written in my this notebook. So now I have to learn all those definitions. So understanding is not the problem, because of which I need to chat GPT and all. I just have to learn all the things. Then retention is your problem, no? Basically you want to learn things verbatim as they are, है ना? Firstly I will learn all the terminologies, all the definitions and all, and in second stage what we will do, that while learning I will get a certain level of understanding. So to deepen that understanding, and from deepening that understanding is that now I don't require the notebook. Like I am thinking myself, because I have learned all the concepts. Though you will still require the notebook by your fourth revision. ये दो रिवीजन में ये चीज़ नहीं होएगी। इसी मैं आई थिंक हमने ना पिछले भी वीडियो में बात की थी कि वी नीड टू हैव राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवरसेल्व्स, है ना? हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर बैठते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लिए। थिंकिंग कि आपने एक बार पढ़ लिया या दो बार पढ़ लिया और उसके बाद आपको अपने नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दैट इज़ समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक, है ना? आई मीन हो सकता है देयर माइट बी पीपल जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती हो, हमें पड़ती है हमें पड़ती है ना? वी नीड रेफरेंस, है ना? ठीक है, सो कीप योर एक्सपेक्टेशंस राइट। ठीक, देखो द राइट वे टू गो अबाउट इज दिस, जो मैंने कहा कि एटलीस्ट अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको पहले बुलेट प्रूफ बनाओ। ठीक है, देयर माइट बी सम लेक्चर्स वेयर यू अंडरस्टूड 100%, बट आई एम श्योर देयर माइट बी सम लेक्चर्स जहाँ पे 70% ही समझ में आया होगा या 80% ही आया होगा। जो 10 या 20% का 30% का गैप है अंडरस्टैंडिंग में, पहले उनको फिल करो, है ना? और ये ऐसा नहीं होगा कि ठीक है लेट्स से कि यू पिक्ड अप अ रैंडम लेक्चर, ऑल्दो वी कैन डू दैट एज वेल, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बट स्टिल क्योंकि कुछ लोगों को क्या है, सीक्वेंशियली जाने में ना बहुत बोरिंग लगता है ना? उनको बहुत मंडेन लगती है ये चीज़ें, बट कोई बात नहीं, हम एक बार सीक्वेंशियली ही चल के देखते हैं। ठीक है, सो जो लेक्चर्स पूरे तरीके से समझ में आ गए हैं उनकी एक फिर से अपने नोट्स की थोरो रीडिंग करना। ठीक है, हो सकता है कि देयर माइट बी सम कॉन्सेप्ट्स जो पहली रीडिंग में छूट गए हों, है ना? ठीक है, जो ऐसे लेक्चर्स रहे होंगे जिनमें गैप्स हैं तो वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट। तो यही प्राइमरी गोल होना चाहिए हमारे पहले रिवीजन का, विच इज़ फिलिंग द गैप्स। ठीक है, थर्ड रिवीजन में जाके यू शुड ट्राई कि ठीक है अब रिटेन कर रहा है मुझे इन्फॉर्मेशन, है ना? तो थर्ड रिवीजन ऑनवर्ड्स यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। ओके, है ना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने दिमाग में ना किसी भी इंफॉर्मेशन को जब लर्न करते हैं तो सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर और एक फ्रेमवर्क खड़ा करते हैं। ठीक है, हाँ, फिर उसमें हम उसके गैप्स को फिल करने लगते हैं, है ना? उस स्ट्रक्चर को कंसोलिडेट करते हैं। करेक्ट, और उसमें फिर बाद में हम फिर छोटे छोटे पॉइंटर्स और ऐड करते हैं जिससे कि हमारा एक पूरे तरीके से जैसे माइंड मैप बन जाता है। करेक्ट, है ना? तो ये बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। ओके,
ठीक है. सो कीप राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ. मेक श्योर दैट दिस रिवीजन है ना इज़ अ रैपिड रिवीजन. स्लो प्रोसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 13 लेक्चर्स को कवर करने में जितना समय लगा है ना, आइडियली इसका आधा ही समय लगना चाहिए फर्स्ट रिवीजन में, या लेट्स से कि 70% समय लगना चाहिए. क्योंकि अगर पूरा उतना ही समय लग रहा है रिवीजन में भी, दैट मीन्स यू आर नॉट रिवाइजिंग, यू आर रीडिंग दैट. ओके. है ना. तो बेसिकली हो सकता है कुछ जगह पे ऐसा लगे भी कि यू आर स्किमिंग थिंग्स, है ना, पर कोई इशू नहीं है. आदित्य क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिसकंसेप्शंस अबाउट लर्निंग इज, लोगों को ये लगता है कि है ना एक बार में ही पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि वो हमेशा के लिए याद रह जाए. करेक्ट. ऐसा कुछ नहीं होता. ओके. आपके रिटेंशन की कैपेसिटी जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टाइम्स you are being exposed to that information. ओके. ठीक है. जितनी बार आप एक्सपोज हुए हो उस इंफॉर्मेशन से, उतनी बार आपके न्यूरॉन्स ट्रिगर हुए हैं. ठीक है. दिस इज साइंस, है ना. और उतनी ही बार आपके नए न्यूरल कनेक्शंस बने हैं, उतनी ही बार आपको उसमें कुछ नए पैटर्न्स नजर आए होंगे. एंड दैट इज हाउ यू रिटेन अ थिंग. ओके. ठीक ना. जैसे ऐसा तो नहीं है कि आप जब ड्राइव करते हो और किसी नए रास्ते पे जब पहली बार जा रहे हो तो एक बार में ही वो पूरा रास्ता याद हो जाता है, कहाँ चाय की टपरी है, कहाँ क्या है ना. एक बार में हो सकता है कि इतना ही याद रहे कि ठीक है, ये सीधा सीधा रोड फॉलो करते हुए जाना है मुझे, ये टर्न लेना है और बस फिर मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा. रास्ते में क्या राशन की दुकान आई, क्या चाय की टपरी आई, कुछ नहीं याद रहता पहले बार में. करेक्ट. जितनी बार उस रास्ते से गुजरते हो उतनी बार नई चीज़ें नोटिस करते हो कि अच्छा यहाँ पे डी-मार्ट था, यहाँ पे कोई सैलून है ना, यहाँ पे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, राइट. तो वो इंफॉर्मेशन फिल इन होने लगती है. एंड दैट इज़ हाउ जितनी बार एक्सपोज होते हो उतनी बार नई इंफॉर्मेशन ऐड होती है और रिटेंशन बढ़ता चला जाता है. करेक्ट. है ना. तो सेम प्रोसेस है दोस्त सीखने का भी. ठीक है. तो हमें मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान देना है ना. हमारी स्पीड ऑफ रिवीजन अच्छी होनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम टाइम्स उस इंफॉर्मेशन से एक्सपोज हो सकें. ओके. ठीक है ना. So you can say that like for the first revision we have to revise the entire classes in 7 days. Sure. So, Okay. yes, if you think you will be able to do it in 7 days, go for it. और मुझे तो ऐसा लगता है कि बिकॉज यू हैव मेड नोट्स, है ना, और अब सिर्फ नोटबुक से ही पढ़ना है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यू शुड बी एबल टू डू इट इन 5 days ओनली. क्योंकि वो खुद की ही हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, खुद की ही लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, है ना. करेक्ट. ठीक है. सो यू शुड बी एबल टू रिवाइज देम मोर क्विकली, इजंट इट. करेक्ट. करेक्ट. है ना. जहाँ पे प्रॉब्लम आए वहाँ पे जो लेक्चर्स हैं उनको दोबारा रेफर करना. करेक्ट. तो 5 दिन का टारगेट सेट करना और 1 या 2 दिन मार्जिन लेके चलना. इन केस अगर नहीं हो पाया तो एटलीस्ट 7 days में हो जाए. तो योर स्पीड शुड बी दैट ऑफ 5 days. ओके. कि 5 दिन में कवर करना है. ठीक है. करेक्ट. ओके. और फिर हर एक सब्सिक्वेंट रिवीजन के साथ ये जो समय लगेगा ना, ये श्रिंक होता चला जाएगा. ओके. ठीक है. यू विल नोटिस इट. आई एम श्योर जब 4 या 5 रिविजन्स हो जाएंगे, है ना, तो यू विल बी एबल टू कंप्रेस ऑल दैट इंफॉर्मेशन जो लेट्स से 60 पेजेस या 100 पेजेस हैं, उनको 20 पेजेस में यू विल बी एबल टू कंप्रेस. करेक्ट. करेक्ट. है ना. और हमारा गोल भी वही होना चाहिए, राइट. ओके. सो इसलिए एग्रेसिव तरीके से रिवीजन करना, पैसिव तरीके से नहीं. दो तरीके होते हैं ना रिवाइज करने के, विच इज़ कि एक तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने बुक पढ़ी है, जैसे नोवेल पढ़ते हैं ना, हम चुपचाप से लेके बैठ जाएं और पन्ने पलटते रहें और फिर सो जाएं. दैट इज़ वेरी बोरिंग और वो बहुत लंबा खिंच जाता है, उसमें कुछ होता भी नहीं है. करेक्ट. एग्रेसिव रिवीजन क्या होता है, या एक्टिव रिवीजन जिसे हम कहते हैं आदित्य, वो ये होता है कि यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन. ओके. ठीक है. कि ठीक है, इसमें मैंने क्या पढ़ा था,
कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, है ना, ये कॉन्सेप्ट क्या है, राइट, ठीक है, Correct. एंड देन यू ट्राई टू फ्रेम माइक्रो क्वेश्चंस फ्रॉम देम। जैसे हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, हमने उस पर हाथ रख लिया, एंड देन वी ट्राई टू रिकॉल इट, ठीक है, हम उसको अपने वर्ड्स में सम अप करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिवीजन, ओके, है ना। तो ये एक्टिव रिवीजन करना, ठीक है। एक और छोटी सी मैं टिप दे देता हूँ विच माइट बी वेरी वेरी अनकन्वेंशनल मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज के टाइम में शायद बहुत कम लोग इस चीज़ को एक्सरसाइज करते होंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये चीज़ इफेक्टिव नहीं है ना। ओके, हमारे 5 सेंसेस यहाँ देते हैं, ठीक है ना, देखना, सुनना, बोलना, फील और ये सारे सेंसेस है ना, और सूंघना, ठीक है, नोज। पढ़ाई में हम कितने सेंसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है कि हमारी इंफॉर्मेशन का रिटेंशन कितना होगा। ओके, जैसे जब हम दिमाग में पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं चीज़ें, ठीक है, लेट्स से यू आर साइलेंटली रीडिंग अ पेज, कितने सेंसेस एंगेज हो रहे हैं उसमें तो एक भी नहीं हो रहा फिर। एक हो रहा है ना, यू आर एबल टू सी द इंफॉर्मेशन। अच्छा, हाँ, मतलब वो देखने वाला हो रहा है, सुनने वाला, बोलने वाला, वो सब नहीं। ठीक है, लेकिन ना तो सुनने वाला एंगेज हो रहा है, ना बोलने वाला एंगेज हो रहा है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी बोरिंग। करेक्ट, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा समय तक याद भी नहीं रहता। करेक्ट। तो इसको और ज़्यादा इफेक्टिव हम कैसे बना सकते हैं? इसको और ज़्यादा इफेक्टिव हम दूसरे सेंसेस को इन्वॉल्व करके बना सकते हैं, है ना। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जो इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है ना, देखो हमारे यहाँ पे ना हिंदू ट्रेडिशन में एक टेक्निक यूज़ की जाती है वेदों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, ओके, है ना, और उसको बोलते हैं अवधान, है ना, ठीक है। सो ये तो बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर है, लेकिन उसका जो एक छोटा सा समरी है मैं वो दे देता हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना उसे बोल के पढ़ें, ठीक है। बोल के पढ़ने से हमारा एक सेंस एंगेज हो रहा है, जो हम खुद बोल रहे हैं वो हमें खुद सुनाई भी दे रहा है, ठीक है, अपनी ही आवाज़ में, है ना, और हम देख भी रहे हैं, तो हमारे 3 सेंसेस एंगेज हो रहे हैं एक साथ, है ना। तो इसीलिए बोल बोल के पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिटेन होती हैं। ओके। लोग 10-10 हज़ार श्लोक याद कर लेते हैं बोल बोल के पढ़ने से, है ना। साथ ही साथ एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा मेंटेन रहता है, आप डिस्ट्रैक्ट कम होते हो, है ना, क्योंकि आप अपना पेस कंट्रोल कर सकते हो। जहाँ लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो वहाँ जल्दी जल्दी पढ़ने लग जाओ, है ना। जहाँ लग रहा है कि थक गए तो थोड़ा स्लो हो जाओ, करेक्ट, ठीक है। सो यूज दिस थिंग टू योर एडवांटेज। ओके, अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, ठीक है। तो अगले 5 दिन का टारगेट सेट करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं, ठीक है, कोई और क्वेश्चन? नहीं, इसके अलावा तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। So for this we need to make a Excel sheet or something like that for that space revision, or I'll give you a better idea. Okay. जो नोटबुक है ना, हाँ, नोटबुक में जो चैप्टर का बिगिनिंग है या लेक्चर का बिगिनिंग है, ठीक है, उस पे एक छोटा टेबल बनाना या 4 कॉलम्स 5 कॉलम्स बनाना उसमें, ओके, ठीक है, और उन कॉलम्स में डेट लिखना कि पहला रिवीजन इसका कब हो रहा है, ठीक है, अगला रिवीजन जो है वो इसका कितने दिन बाद होना है, लेट्स से 3 days लेटर, तो 3 दिन बाद की डेट लिखना। उसके बाद अगला रिवीजन 7 days लेटर होगा, तो 7 दिन बाद, या 7th डे होगा, ठीक है, तो 7th डे की डेट लिखना। लेट्स से कि जैसे 1 तारीख को आपने इसका पहला रिवीजन किया, 3 तारीख को इसका दूसरा रिवीजन हो गया, और 7 तारीख को इसका तीसरा रिवीजन हो गया। तो ऐसे डेट्स डालना उसमें। तो इस हिसाब से क्या होगा कि यू विल हैव अ प्री डिसाइडेड टारगेट
है ना? करेक्ट है। तो वो चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी कि कब क्या करना है। तो आपके दिमाग के ऊपर अननेसेसरी बर्डन भी नहीं रहेगा डिसीजन लेने का कि आज क्या पढ़ना है करेक्ट। ना? ठीक है। क्योंकि आज 13 है तो 16 तारीख का शेड्यूल जो है वो अपने आप बना हुआ है पहले से कि 16 तारीख को क्या क्या रिवाइज करना है। करेक्ट है ना? सो यूज दिस थिंग। ठीक है। ठीक। और ऐसा करना, एक और जो चीज़ करनी है वो ये कि अब जो ये पहला रिवीजन होगा ना, तो इसका जो पहला स्पेस रखना है, जैसे पहले रिवीजन के बाद तुरंत जो दूसरे रिवीजन का स्पेस रखना, वो सेम डे इवनिंग होना चाहिए। यानी कि आज मॉर्निंग में लेट्स से कि आपने क्लास 1 और 2 का रिवीजन किया, तो उसे इवनिंग में दोबारा रिवाइज करके सोना है। ओके। उसका रीज़न ये है, वही बात है ना, कि लेट्स से कि यू आर फिलिंग द गैप इन योर माइंड, है ना? जो इन्फॉर्मेशन गैप्स हैं उनको आप पहले रिवीजन में फिल कर रहे हो। अब जो आपने पहले रिवीजन में जिन गैप्स को फिल किया उनको कंसोलिडेट भी तो करना है। करेक्ट। क्योंकि अगर उसे 3 दिन बाद पढ़ोगे, है ना, एक बार पढ़ने के बाद, तो उसमें से बहुत कम चीज़ें याद रह जाएंगी ना। वो दोबारा से आपको गूगल पे सर्च करके चैट जीपीटी की पुरानी चैट्स निकाल के देखना पड़ेगा। करेक्ट। है ना? या फिर वो माइक्रो नोट्स को रेफर करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसी शाम में अगर आप उसे सोने से पहले पढ़ लोगे तो दैट थिंग विल बी कंसोलिडेटेड। फिर उसके बाद जब आप 3rd डे या 4th डे उसको जब रिवाइज करोगे, दैट विल बी मच ईजियर। If I'm reading something in the evening itself for the first time, then तो 12 घंटे के अंदर लेट्स से कि जब भी ख़त्म हो रहा है, अगर आपने इवनिंग में पढ़ा, ठीक है, और लेट्स से कि आपकी नाइट शिफ्ट है ना, तो उसके बाद जब वो शिफ्ट ख़त्म हो रही है एंड यू आर गोइंग टू गो फॉर अ स्लीप, उससे पहले आधा घंटा पढ़ लो। like in 12 after 12 hours I have to again refer the same thing Within 12 hours. within 12 hours. Okay. Within 12 hours. Okay. है ना? ठीक है। ठीक है। और उसमें रिकॉल करने की कोशिश करना कि ठीक है इसमें क्या था, इसमें क्या था। समझ गया, गॉट इट। तो यानी कि एक ये 12 घंटे के ड्यूरेशन में उसका 2 बार एक्सपोजर हो जाएगा उसी इंफॉर्मेशन का। करेक्ट। है ना? इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो जाएगा। ठीक है। तो भले ही चाहे कम पढ़ा जाए एक बार में, ठीक है, लेकिन वो 2 रिवीजन हो जाएंगे एक सिंगल डे में। करेक्ट। है ना? ठीक है। तो ये चीज़ करना। सो टेक अ डायरी एंड राइट दीज थिंग्स डाउन, जो मैंने कही है। विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस ऑल? The better option is that I will write all those things down. हाँ, लिखना। ठीक है। एक तो स्पेस्ड रिवीजन का लिखना, बोल के रिवाइज करना है। ठीक है। ओके। और जो भी इंफॉर्मेशन आपने मॉर्निंग में या इवनिंग में पढ़ी है, ठीक है, जब भी आप उसे पढ़ रहे हो तो विद इन 12 आवर्स उसका सेकेंड एक्सपोजर होना चाहिए एक। करेक्ट। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है, डन। बस ये 3 पॉइंटर्स पे काम करते हैं एंड लेट्स सी ये हफ्ता कैसा जाता है। हाँ, उसके बाद जो भी शॉर्ट कमिंग्स होगी तो हम अगले फ्राइडे उन सबको टैकल करेंगे, है ना? ओके। ठीक है। कोई और सवाल, एनीथिंग दैट यू हैव इन माइंड? Right now I don't have anything. ठीक है। तो हाउ आर यू फीलिंग ओवरऑल आफ्टर दिस? ठीक लग रहा है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा लग रहा है? Yeah, the thing is now that whatever we are doing, so when we get a logic, like for example, before our discussion, I was thinking that in 13 days I watched all the videos, and in next 13 days I will again revise all those things. But you give another perspective that if you revise all
the things in 50% time or 70% time, then that will be more fruitful. yes. When you got a logical reasoning behind something, so you always means I always feel good and happy. क्योंकि रिवीजन का लॉजिक ही वही है ना आदित्य भाई. Correct. अगर आपको उसी इंफॉर्मेशन को दोबारा उतना ही समय लेके पढ़ना होता तो वो रीडिंग कहलाता, ना कि रिवीजन कहलाता. रिवीजन का मतलब क्या है? यू आर जस्ट विजुअलाइजिंग दैट थिंग, है ना, अगेन, राइट. विच मीन्स पन्ने पलट के किसी भी तरीके से आप उसे अपनी आंखों के सामने से गुजार रहे हो क्विकली कि आपने क्या क्या पढ़ा है. दैट इज रिवीजन ना, दैट इज द होल आइडिया ऑफ इट, है ना. तो वही है. तो हमें बस वो मार्ग चुन के चलना है जो हमारे लिए मैक्सिमम बेनिफिट वाला मार्ग हो, ठीक है. क्योंकि हमें अपनी जो ये जर्नी है ना, इसको मीनिंगफुल बनाना है. और मीनिंग जो है वो तभी निकलता है जब हमारे एफर्ट्स जो हैं वो सही दिशा में लगे. करेक्ट, है ना. तो ये वाली बात है. तो आई थिंक यू आर डूइंग वेल, है ना, एंड यू विल डू वंडरफुल. सो कीप गोइंग. और अगले हफ्ते मिलते हैं, बहुत अच्छा करेंगे. बिल्कुल भैया. ठीक है. तो यार मैं तो हर बार एक्साइटेड हो जाता हूँ, मतलब जब भी हम ऐसा नया गोल सेट करते हैं. और हर बार ठीक है, आई एम श्योर सारी चीज़ें पैसा वसूल है फॉर यू. हाँ, बहुत. That was I was saying ना कि every time I get some new logic, new perspective. So whenever these type of things happen, at least with me, I always feel happy. कि इस चीज को रिवाइज करना तो ऐसे भी एक तरीका है, और which is more meaningful and effective. Yeah, if you are able to derive happiness from this na, then you will become unstoppable. क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनको ना हार्ड वर्क जो है वो मिजरेबल लगता है. ना आत्मा दुखती है, उनकी आत्मा रोती है काम करते हुए. The main thing is ना that like if I am doing hard work and my expectations are not correct, so I feel that with most of the people, including me, like if we'll set goals far from our capabilities, so we are doing hard work, but we are not achieving the goal. The reason behind that is that we think a lot and make a very big goal. So because of this, our entire life we will feel that I did hard work and all, but didn't get that much reward. Right. So understand these small concepts, that what type of expectations you need to make for yourself. What is the correct procedure if you want to learn something. How you can memorize things. So everything had certain concepts. So when you learn all those concepts, you will definitely feel fulfilled, happy, because whatever you are thinking that I have to do thing, so now you have the roadmap because of those certain perspectives. This is what I feel, that when you have clarity of all these things, like which we are discussing right now, and I am getting clarity for sure. So like after 6 months, 12 months, so automatically this type of thinking will develop. Okay, right now I am expecting this thing, so is my expectation correct or not? Then I will make a plan, follow that plan, and when my expectation is correct, my the hard work which I am putting in, that is also in the same line, that I am achieving goals, right, whatever exciting. So definitely, at least I will feel happy. I can't say about everyone, but for everyone I can say that when your goals are not as per your capabilities, so you're not able to achieve all those goals ever, and feel that I did so much hard work but it didn't achieve that, my I am unlucky and all those sort of things. Generally these type of things happen. True. That's why I'm feeling, again coming to the main question, that why I'm feeling happy. So this is the reason I'm feeling happy, because I am getting a correct perspective, correct guidance, that how to
look at things to move forward, how to steps and all. So this is the in. परफेक्ट ठीक है। एक चीज़ और बिफोर वी गो है ना कि Okay. जो ये स्पेस रिवीजन वाला है ना, ये फिलहाल बस टेबल बना के रख लेना। अभी इसमें ज़्यादा कुछ फिल मत करना डेट्स, है ना। रीज़न बिंग मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पहले हम 5 दिन में जल्दी से इसको रिवीजन को ख़त्म कर दें, है ना। और वो भी इस फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ कि 12 आवर्स में सेकेंड एक्सपोजर उसका होना चाहिए। So for I don't have to make table and all, मतलब वो उसमें करना नहीं है अभी। नहीं, कॉलम्स बना लेना उसके ऊपर, उसमें डेट अभी मत डालना। अच्छा, मतलब मान लो कि मैंने कल एक चीज पढ़ी तो उसके अगला रिवीजन कब करना उसकी डेट नहीं डालनी है। अगले रिवीजन की डेट मत डालना, जो आज जैसे आज पढ़ा ना उसकी एक डेट डाल लेना। अच्छा, बस डे 1 में चीजें नोट डाउन करनी है, डे 3 में, डे 7 में कुछ नहीं लिखना है। अभी कुछ मत लिखना, ठीक है। हाँ, है। उसके लेकिन ये रूल जरूर फॉलो करना कि उसके 2 एक्सपोजर्स होने चाहिए विद इन 12 आवर्स। Within 12 hours, ठीक विद है। इन 12 आवर्स, ठीक ओके। है। क्योंकि हमने 5 दिन का ही बहुत शॉर्ट गोल लिया है। लेट्स से सपोज जैसे अभी 13 क्लासेस हैं, हम इनको 5 दिन में कंप्रेस कर रहे हैं, है ना। अभी इशू क्या आएगा अगर हम अभी से डेट डाल देंगे तो, क्योंकि ये तो पहला रिवीजन है ना। करेक्ट। अभी से डेट डाल देंगे तो इशू ये आएगा कि जैसे लेट्स से क्लास 1 को आज पढ़ा है, ठीक है, और उसके बाद डे 3 पे क्लास 1 का फिर से रिवीजन आ गया, और उस दिन आपको क्लास 6 या क्लास 7 दोबारा रिवाइज करना है, मतलब फर्स्ट रिवीजन उसका होगा, ठीक है। करेक्ट। और आप अगर उस समय ये सोचोगे कि मैं लेट्स से कि मुझे पहला रिवीजन करने में इस क्लास का 1 घंटा लगा था, ठीक है, और अब मैं आधे घंटे में पहले क्लास 1 को निपटा देता हूँ और उसके बाद मैं क्लास 6 और 7 को टाइम दूंगा, है ना, तब तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर फिर से वही गलती की और ठीक से रिवाइज नहीं किया और फिर से 1 घंटा या 1.5 घंटा लग गया उसी क्लास 1 को दोबारा रिवाइज करने में, तो क्लास 6 और 7 के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। एंड बिसाइड्स इट विल बिकम वेरी वेरी बोरिंग। And there is some fixed time, like if I'm revising like class 1, हाँ, so that class duration was 3 hours. So there is any fixed time कि इतने टाइम में रिवाइज करना है या मिनिमम इतना टाइम तो होना ही चाहिए, because we can revise in 10 minutes also or in like 1 hour also. यार कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है ना। Okay. इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि आप कितने कंफर्टेबल हो अपनी स्पीड के साथ, है ना। जैसे Okay. लेट्स से कि क्लास 1 के 10 पेज के नोट्स हैं, तो आप उन 10 पेजेस से कितना क्विकली गुजर सकते हो एट अ कंफर्टेबल पेस जहां आपको सब समझ में आ रहा है। How we can verify that after revising that कि हाँ मेरे को तो समझ आ गया वो जो मैंने रिवाइज किया। बुक बंद करो, नोटबुक, ठीक है, Okay. और रिकॉल करो। उससे ज़्यादा बड़ा रियलिटी चेक कुछ नहीं हो सकता। तो while recalling मतलब वो पूरा 100% रिकॉल होना चाहिए या फिर ऐसा नहीं। कुछ है कि मिनिमम इतना भी रिकॉल हो गया है तो मतलब है कि हाँ 100% बिल्कुल नहीं हो ही नहीं सकता 100% रिकॉल, ठीक है, पहले रिवीजन में तो। लेकिन जो मेन कंसेप्ट्स हैं ना, जिसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं, लेट्स से कि उन 10 पेजेस में 10 हेडिंग्स हैं, ठीक है। ओके। तो पहला स्टेज ऑफ रिकॉल क्या होना चाहिए कि आप बुक बंद करो एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है, नोटबुक, और उन 10 हेडिंग्स को रिकॉल करने की कोशिश करो। अच्छा, विदाउट डेफिनेशन, जस्ट हेडिंग्स। जस्ट हेडिंग्स, ठीक है। तो अगर वो 10 के 10 आप सही से तरीके से रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपका एक स्टेप पूरा हो गया। ओके। ठीक है, उसको फिर आप अलग अलग ऑर्डर में जम्बल्ड वर्ड्स की तरह से रिकॉल करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है, इन अ डिफरेंट ऑर्डर, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट दोस थिंग्स, ठीक है। ओके। अब आपके पास स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ढांचा, है ना, फ्रेमवर्क। अब आप उसमें रिकॉल करो कि ठीक है, पहली हेडिंग में क्या क्या था, ओके। दूसरी हेडिंग में क्या क्या था, सब टॉपिक्स, ठीक है, और उसके अंदर एक सब, ठीक है, ग्रेजुअली जब ऐसे करोगे तो आपने फ्रेमवर्क को और मजबूत कर लिया। ओके। ठीक है ना, है ना। उसके बाद फिर आप ग्रेजुअली रिकॉल करोगे कि ठीक है, ये सब टॉपिक्स जो थे, है ना, इनके कॉन्सेप्ट्स क्या थे, डेफिनेशंस क्या क्या थी इसमें। ओके। ठीक है, तो आप बेसिकली ऐसा कर रहे हो कि आपने एक ब्लैंक पेज लिया है, ठीक है, और उस पे आप स्ट्रक्चर को फिल करते जा रहे हो हर एक सक्सेसिव स्टेज में। ओके। ये बिल्कुल वैसा ही है,
तो आप दो तरीके से एक्चुअल में पेपर लेना ही है ना, मतलब पेपर ले लिया फिर उस पे पहले हेडिंग्स लिखी और बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, जो जो अच्छा लगे। लेट्स से कि अगर सिर्फ मन में रिकॉल करना है, ठीक है, नोटबुक बंद करके, तो मन में रिकॉल कर लेना। अदरवाइज ब्लैंक पेपर लेना वो सबसे अच्छा ट्रिक है, सबसे अच्छा ट्रिक। और सिंपली स्टार्ट राइटिंग जो पढ़ा है, जितना याद आ रहा है ना, रैंडमली भी याद आ रहा है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उसको वेरीफाई करना कि आपने जो लिखा वो सही लिखा क्या, वो कितना रेलेवेंट है, कितना मैच होता है, ठीक है। ओके फिर जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, उनको सर्कल करना, ओके ठीक है। और उसके बाद दोबारा जब शाम की जब रीडिंग हो, सेकंड एक्सपोजर, तो शाम में उन चीज़ों को एक बार दोबारा देखना कि ठीक है, आज मेरी यहाँ गलती हुई, ओके है ना। तो इमीडिएटली वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो गई सारी। लेकिन तो फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट हुआ ना एक। हाँ देखो क्या है, कोई भी रिवीजन है ना तब तक सक्सेसफुल नहीं कहलाएगा जब तक कि आप उसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म नहीं क्रिएट करते। ज़्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं ना आदित्य, वो क्यों फेल होते हैं? पढ़ लिया बहुत अच्छे से, रिवाइज बहुत अच्छे से कर लिया, अपने मन में उनको लगता है कि उनका रिवीजन परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन रिवीजन को जब तक आप सही कसौटी पे परखोगे नहीं, तब तक वो रिवीजन बेकार है। और उसको परखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है भाई। आपके केस में मुझे नहीं पता कि टेस्ट सीरीजेस अवेलेबल हैं या नहीं इस कोर्स के लिए, ठीक है ना, बिकॉज ये ISO सर्टिफिकेशन का कोर्स है। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट माइक्रो क्वेश्चंस फ्रॉम इट, करेक्ट, हर एक टॉपिक से, ठीक है। यू कैन क्रिएट योर ओन क्वेश्चंस। करेक्ट, या दूसरा तरीका जो कर सकते हैं वो ये कि जितना भी कंटेंट है, मटेरियल है, या लेट्स से कि वीडियो का जो लिंक है, ठीक है, या अगर आपने वीडियो सेव किया हुआ है, डाउनलोडेड है, तो आप नोटबुक LM की सहायता लेके उससे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो, ओके। ठीक है। वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस क्रिएट करके दे देगा। तो ये AI का यूज़ हो गया उसमें। आपके जो वीडियो है वो YouTube पे अवेलेबल है क्या, या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, या सिर्फ वो कोचिंग का एक वो वीडियो है? नहीं, वो उनका उन्होंने खुद का ही वो वेबसाइट बना रखा है, ठीक है, उन्होंने अपना वेबसाइट बना रखा है ना, तो फिर तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो क्या उस वीडियो को? नहीं, उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर ये AI वाला अप्रोच आपके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। आप खुद से क्वेश्चंस बनाओ। आप एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इतना तो समझ सकते हो ना कि ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेट्स से आपने कोई डेफिनेशन पढ़ी, तो इतना तो क्वेश्चन बनाना आपको भी आता है कि ठीक है ना, गिव द डेफिनेशन ऑफ रिस्क, ठीक है। आपने फिर रिस्क के अंदर टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ा, तो आप इतना तो क्वेश्चन बना सकते हो ना कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क्स। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, आपने जो टाइप्स पढ़े रिस्क के, उसके बाद आपने उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी पढ़े, है ना, या जो मेल प्रैक्टिसेस होती हैं वो पढ़े आपने। तो आप ये तो क्वेश्चन बना सकते हो ना कि भाई इन दिस पर्टिकुलर रिस्क, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस आर देयर, है ना, इफ वी टेक रिस्क, कि कितने कॉन्सिक्वेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप ऐसे खुद से क्वेश्चंस बनाते हुए चलो, अपने आप से पूछते चलो बार 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 बार। इसको अपन आत्ममंथन कहते हैं बेसिकली, है ना। आत्ममंथन तो खुद का मंथन करना हो जाता है, लेकिन ये बेसिकली मंथन ही है एक तरीके का, है ना। यू आर चर्निंग दैट इंफॉर्मेशन, बस। तो उसको मेंटली जितना सर्कुलेट करोगे, जितना चर्न करोगे, उतना अच्छे से वो इंफॉर्मेशन मेमोराइज होगी। ओके, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस, सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया ना, टेक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, उस पर वो क्वेश्चन भी लिखो जो खुद से पूछ रहे हो। ओके, तो वो आपके लिए एक नोट्स का भी यूँ मान के चलो कि एक सब नोट्स बन जाएंगे आपके लिए। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्रेस होती चली जाएगी ग्रेजुअली। करेक्ट करेक्ट, है ना। बचपन में महसूस किया होगा ना, जैसे हम जब लेट्स से 10th 11th या 12th में थे, तो इतनी मोटी NCERT होती थी, ठीक है,
और उसके 10 तो मुझे नहीं पता, बट 7-8 रिवीजन जब भी होते थे, लाइक मैंने करीब 15-20 रिवीजन किए होंगे बायोलॉजी के एनसीईआरटी के, है ना? Okay. ठीक है, हर बार जब रिवीजन उसका पूरा होता हुआ चला गया ना, तो मेरी इन्फॉर्मेशन वो कंप्रेस होती चली गई, ठीक है? Correct. आफ्टर लाइक 20th रिवीजन, है ना, आई वॉज कंफर्टेबल एंड एट अ स्टेज जहाँ पे मैं एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लूँ, उस पे इंडेक्स की तरह पूरा फ्रेमवर्क लिखूँ, फिर Okay. अगले पेज पे उस फ्रेमवर्क को एक्स्ट्रापोलेट करता हुआ चलूँ या स्प्रेड आउट करता हुआ चलूँ कि ठीक है, इस हेडिंग में क्या सब हेडिंग्स हैं, ठीक है, उन सब हेडिंग्स के अंदर का कंटेंट क्या है, ठीक है, उसमें साइंटिफिक नेम्स कितने दे रखे हैं, है ना, ठीक है, हाँ. जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि अब मुझे इतने साल हो गए हैं उस चीज़ को पढ़े हुए, लेकिन कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आज भी उसमें से रिकॉल करके और मैं पढ़ा पाता हूँ, है ना। जैसे अपने बहन भाइयों को कभी लेट्स से कि ओवेरियन साइकिल पढ़ा दिया, रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया, कुछ और पढ़ा दिया, है ना, तो रैंडम वो पढ़ा लेते हैं भाई, है ना। Correct. तो ये फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ करना, ठीक है। तो ये 2 प्रिंसिपल ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। रिवीजन एंड उसका सेकंड एक्सपोजर विद इन 12 आवर्स, और उसके बाद फिर ये फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट करना। Okay. ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेना और उस पर लिखना, और डिसहार्टन नहीं होना है अगर कुछ ना याद रहे या कुछ रिकॉल ना कर पाओ, तो बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना है, Okay. क्योंकि ये पहला ही रिवीजन है, Okay. ठीक है। जो याद आए वो तो लिख देना, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में ही याद आए तो ही लिखना है, रैंडमली, हाँ, रैंडमली जो याद आ रहा है बस लिखते जाना, ठीक है। कि भाई एक हेडिंग में मुझे ये 4 पॉइंटर्स याद आए, तो ज़रूरी है कि उसके बीच के जो चीज़ें छूट गई है, वो जो गैप्स छूट गए हैं, उनके चक्कर में मैं इसे लिखूँ ही ना, इन 4 पॉइंटर्स को लिखना भाई, Okay. ठीक है। उसके बाद गैप्स फिल करना देख के, Okay. ठीक है, हो जाएगा ये काम। हाँ. ओके, Okay. ठीक है आदित्य, तो फिर चलें फिर। हाँ बिल्कुल. ओके, ठीक है, देन सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट फ्राइडे।